So in the first session, Pastor Dev spoke to us concerning the importance of fasting and prayer. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जो कल फर्स्ट सेशन में पास्टर देव ने हमें इसका महत्व बताया था कि उपवास प्रार्थना कितनी जरूरी है. And he was really stressing that we have to close the door towards the worldliness and open the door towards godliness. और वो यही बोल रहे थे कि हमें दुनिया के लिए और दुनिया की चीजों के लिए दरवाजा बंद करना है और प्रभु के लिए अपने दरवाजे को खोलना है. And today morning in the second session, Pastor Neeraj also briefly revised what Pastor Dev was speaking. और आज सुबह भी प्रभु के दास पास्टर नीरज ने भी रिवाइज कराया फिर से जो प्रभु के दास पास्टर देव ने शेयर किया था. He revised the main points what Pastor Dev spoke. और उन्होंने मेन पॉइंट्स पे बात की थी जो पास्टर देव ने कल अपने वचन में सरमन में बताया था. And the main thing which Pastor Neeraj stressed was that corporate prayer and individual prayers, they matter a lot to God and to us. और सुबह भी प्रभु के दास पास्टर नीरज ने भी और पास्टर देव ने भी यही बोला था कि जो उपवास प्रार्थना है जो हम मिलके जब हम करते हैं वो प्रभु की नजर में बहुत महत्व है उसका. Fasting and prayer, if we see in the scriptures, people of old have received deliverance from impossible situations. और हम देखते हैं कि पुराने नियम में कैसे जो उपवास प्रार्थना को करके प्रभु के लोगों ने छुटकारा प्राप्त किया. Today we will also see what Jesus, our Lord, is saying about fasting and prayer. और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है उपवास प्रार्थना के विषय में. What is God's perspective in fasting and prayer? What is this actually? What we think and what God thinks about fasting and prayer? और क्या परमेश्वर सोचता है उपवास प्रार्थना के विषय में और हम क्या सोचते हैं और परमेश्वर क्या सोचता है उपवास प्रार्थना के विषय में. So let's go to Mark 9 verses 25 to 29. और मरकुस उसका 9 और उसका 25 से 29 तक हम पढ़ेंगे. When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the evil spirit. You deaf and mute spirit, he said, I am command you, come out of him and never enter him again. Verse 25. और 25 में लिखा है जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लग रही है तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगे और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल आ और उसमें कभी फिर प्रवेश ना करना. Verse 26 says the spirit shrieked, convulsed him violently and came out. The boy looked so much like a corpse that many said he is dead. और 26 में लिखा है तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरे हुए में से जी उठा, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया है. Verse 27 says, but Jesus took him by the hand and lifted him to his feet and he stood up. और 27 में लिखा है कि परंतु यीशु ने उसके हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया. Verse 28. After Jesus had gone indoors, his disciple asked him privately, why couldn't we drive it out? और 28 में लिखा है जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल सके. Actually, if we read some portion about these scriptures, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे then we see that the story is concerning healing of a boy with the evil spirit. और आप देखेंगे कि ये जो कहानी है इसमें एक लड़का था जिसको दुष्ट आत्मा थी. And we also see that that people were asking the disciples to cast the demons out from this boy.
और हम देखते हैं कि जिस लड़के में दुष्ट आत्मा थी, इस लड़के से प्रभु जो लोग थे वो चाहते थे कि जो चेले हैं प्रभु यीशु के, वो दुष्ट आत्मा को निकालें। Verse 17 says, a man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son, who is possessed by an evil spirit that has robbed him of the speech. Verse 18 says, whenever it seizes him, it throws him into the ground. He foams at the mouth and gnashes his teeth and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. और 18 में लिखा है, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह से फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखा जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल ना सके। And if we read also some scriptures above chapter 9, then we find that the disciples were able to cast out evil spirits and do miracles in many cases. और अगर आप 9 अध्याय के पहले पढ़ें तो आप देखेंगे कि जो चेले थे वो दुष्ट आत्मा को निकाल भी पा रहे थे और जो बीमार है उनको चंगा भी कर पा रहे थे। If we see before chapter 9, in this Mark chapter 9, then we see that the disciples were able to heal people and cast out demons. और अगर 9 अध्याय से अगर आप पहले पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो चेले थे वो दुष्ट आत्मा को निकाल पा रहे थे और बीमारों को चंगा कर पा रहे थे। Now the disciples are asking Jesus that why couldn't we do it? और अब जो चेले हैं वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हम क्यों नहीं दुष्ट आत्मा को निकाल पा रहे। And verse 29 has the answer. और जो 9 का 29 है उसमें उत्तर दिया गया है। Jesus replied, this kind came out only by fasting and prayer. और यीशु ने उत्तर दिया, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। So here we see that Lord Jesus himself is telling us that the importance of fasting and prayer. और यीशु मसीह यहाँ पे खुद उपवास प्रार्थना की जो अहमियत को बता रहे हैं। And the disciples could not do it, but Jesus now is telling them that these kind of things, the things which seems very difficult, this type of things can be dealt by fasting and prayer. और यीशु मसीह इनको खुद बता रहे हैं कि ऐसी चीजें जो हैं वो सिर्फ उपवास प्रार्थना के ही द्वारा निकल सकती हैं। So this again tells us the significance and importance of fasting and prayer when Lord himself is saying and telling his disciples how much more we are required to do fasting and prayer for dealing our day-to-day challenges in our lives. और हमें अगर प्रभु यीशु मसीह इस बात पे इतना महत्व दे रहे हैं तो इसका मतलब है हमें हर दिन उपवास प्रार्थना पे कितना ध्यान दे के हमें करना है, क्योंकि प्रभु इस पे इतना मतलब फोकस कर रहे हैं। Now the question comes, what is true fasting and in God's perspective, and what is fasting in the worldly view? और अब सवाल उठता है कि सही तरह का उपवास कैसा है और गलत उपवास जो दुनियावी तरीके का है वो कैसा है। अब ये सवाल है। We all know how the world system and how before we met Christ we used to do fasting and also prayer. और हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह से मिलने से पहले हम कैसे दुनियावी तरीके से उपवास करते थे और हमारी प्रार्थना भी बिल्कुल अलग थी। In religion we try to please God with our own efforts. और जो धर्म होता है उसमें हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं अपनी खुद की क्षमता से। But when
in God's perspective, we can only please God by walking in His ways. मगर प्रभु के नजरिए से अगर देखें तो परमेश्वर को हम सिर्फ उसी के तरीकों को इस्तेमाल करके ही हम खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। So it becomes very important that we learn God's perspective of fasting and prayer. तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हम प्रभु के जो तरीके हैं, प्रभु के तरीकों को जाने ताकि हम उपवास प्रार्थना प्रभु के तरीकों के अनुसार करें। Then we will be able to please God. और फिर हम परमेश्वर का जो प्रचार हम कर पाएंगे अच्छे तरीके से और प्रभु को खुश कर पाएंगे अच्छे तरीके से। When we are able to please God, then we will be in the favor of God. और जब हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे तो हम परमेश्वर की जो कृपा है वो हमारे ऊपर बनी रहेगी प्रभु की। And the favor of God is game changer in our lives. और जो प्रभु का हाथ हमारे ऊपर रहता है, उसकी कृपा जो हमारे ऊपर रहती है, वो ही हर चीज को बदल देती है, वो ही गेम चेंजर है कहने का मतलब। God in His mercy has kept in the Holy Bible what is His perspective about true fasting and prayer. और प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने अपने वचन में हमें सिखाया है, बताया है कि उसकी नजर में जो सही तरह से उपवास जो और प्रार्थना है वो कैसे की जाती है। Let's turn to Isaiah 58. और आए यशाया 58 को हम पढ़ेंगे। I will be reading verses 6 to 12. और 58 का 6 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। Very clear cut and deep insight concerning the subject. और बहुत ही सीधे तरीके से प्रभु ने बहुत ही गहराई से यहाँ पे वचन लिखे हुए हैं उपवास के बारे में। Everything has been made clear, but we are required to do. और प्रभु ने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है इस वचन में, और हमें यही इसी तरीके से हमें चीजें करनी है। And also we are told what are the benefits if we follow this. और इसमें हमारे फायदे भी लिखे हैं, क्या इसके फायदे हैं अगर हम इस तरीके से उपवास प्रार्थना करेंगे। And how we are required to enter this place और of getting favor from God by true fasting and prayer. और कैसे उपवास प्रार्थना को इस्तेमाल करके हम how we can get परमेश्वर का जो कृपा है परमेश्वर की उसमें बने रह सकते हैं। So verse 6 of Isaiah 58 says, is not this the kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. और 6 आयत में लिखा है 58 के 6 में यशाया, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या ये नहीं कि अन्य के न्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना। We are required to examine ourselves in light of this verse, and are we at a place of doing justice or injustice to the people who are in the sphere of our influence? और हमें इसी वचन के अनुसार अपने आप के जीवन को टटोलना है और चेक करना है, क्या हम हमारे जो आगे पीछे जो लोग हैं क्या हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं या उनके साथ हम सही तरीके से हम डील कर रहे हैं या नहीं। Are we treating the people who are working in our homes, maids and other people, kindly or harshly or in an injustice way, or are we holding their wages and giving them less than required? और क्या हम जो लोग हमारे घरों में काम करते हैं, जो हमारे आगे पीछे रहते हैं, क्या हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या हम उनकी जो उनकी सैलरी है उनको भी क्या हम रोक देते हैं या हम उनके साथ सही तरीके से प्रेम से और अच्छे मतलब प्यार से व्यवहार करते हैं। Please listen, nothing is hidden from God. और कुछ भी परमेश्वर के नजर से छुपा नहीं है। Who is the righteous judge? क्योंकि परमेश्वर जो है वो बिल्कुल सही न्याय करने वाला परमेश्वर है।
Verse 7 says, is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter, when you see the naked to clothe him, and not to run away from your own flesh and blood? और 7 में लिखा है, क्या वे यह नहीं कि अपनी रोटी भूखे को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने अपने को ना छिपाना। I praise God that our NDF church was aware of this and this truth. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारी कलीसिया इस सच्चाई के बारे में जानती है। Especially in the COVID times, our social project team, with the guidance of our pastor and the leadership, distributed food to the needy people in the streets. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ हमारे पासवान के लिए और हमारी सोशल टीम के लिए, जिसने इस कोरोना के समय में जो गरीब लोग था उनके लिए खाना मुहैया कराने की जो उन्होंने कोशिश करी। Even recently also, our social team from our NDF church visited Sector 4, those ladies who are marginalized. और अभी भी जो हम प्रभु की दया से जो टीम थी वो सेक्टर 4 के जो ओल्ड एज होम था, जहाँ पे वृद्ध आश्रम था, वहां पे जा पाई और अपना प्रभु का प्रेम उन्हें उनके साथ बांट पाई। And distributed rations and food to them. Praise God for that. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु उनको इस्तेमाल कर पाया और एक आशीष का कारण बन पाए वो। And in the Hindi congregation, the children, they did the skit and for some time they see the smile on their faces, sad faces. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे हिंदी कलीसिया के जो बच्चे हैं वो एक स्किट कर पाए और कुछ समय के लिए उनके जो वहां पे जो बहनें थी उनके फेस पे, उनके मुंह में मुस्कान ला पाए। Verse 8 says, then your light will break forth like the dawn and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you and the glory of the Lord will be your rear guard. और 8 में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा। The Lord says very clearly that if we obey him in the verse 6 and verse 7, और प्रभु कहता है 6 और 7 में, अगर तू मेरी इस बात को मानेगा, अगर हम प्रभु के इस वचनों को 6 और 7 को मानेंगे, then the reward will be there in verse 8. और उसी के अनुसार अगर हम मानेंगे तो उसका हमें पुरस्कार भी मिलेगा जो 8वीं आयत में लिखा है। The presence of God with us is a big thing. प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ होना बहुत बड़ी बात है। That is a very big thing that this truth must sink into our system. और ये सच्चाई जो है कि प्रभु की उपस्थिति बहुत ही बड़ी बात है, ये हमारे अंदर आज बैठ जानी चाहिए। Verse 9 says, then you will call and the Lord will answer. You will cry for help and he will say, here am I. If you do away with the yoke of oppression, with the pointing finger and malicious talk. और 9 में लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे तो। Here we see that when we call to God and when we cry out to him for help, और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं मदद के लिए, and he says that I am there and yes, I will deliver you from your challenge. और प्रभु कहता है कि तब मैं तुझे, जब तू पुकारेगा मेरी दुहाई देगा, मैं तेरी सुन लूंगा, मेरे तेरे चैलेंज में तेरी मदद करूंगा। True fasting and prayer helps us to enter the presence of God from where deliverance flows.
और जो सही उस उपवास प्रार्थना है वो हमें मदद करती है प्रभु की उपस्थिति में आने की, और फिर उस उपस्थिति में परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। Because in religion, we cry from our mouths and we just do the formality sake the things, not from the heart that are pleasing to God. और कई बार क्या होता है कि हम अपने मुंह से बोलते हैं बातें, मगर अपने हम दिल से असली में उन बातों को नहीं बोल रहे होते। तो हमें जरूरी है कि हम अपने दिल से चीजों को करें। When we pour out our heart to God and cry out to Him with brokenness, we और can't जब say, हम अपने जो टूटे हुए दिल को, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर सुन लेता है उसको। the Lord God Almighty cannot see the tears in our eyes. When our earthly fathers also struggle to see the tears in our eyes, how much more our heavenly Father is concerned about our tears. हमारा जो शारीरिक पिता है वो भी हमारी इतनी चिंता करता है और हमारी बातों को, हमारी मदद करता है, और उससे भी कहीं ज्यादा हमारा जो आत्मिक, हमारा स्वर्गीय पिता है, वो क्यों ना हमारी मदद करेगा। But again, here the condition God has put in this verse 9 is that if you do away with the yoke of oppression, with the pointing finger and malicious talk, mostly we offend God with our mouth. और यहाँ पे 9 में वो कह रहा है कि अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल मत कर, किसी को गलत मत बोल, उंगली मत किसी पे उठा, दुष्ट बातें मत कर। और कई बार क्या होता है, हम अपनी जुबान को बड़ा गलत हम इस्तेमाल करते हैं। Many times we start doubting the promises of God and we say with our mouth how these things can be because our little mind cannot add up these things. और कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की जो बातें हैं उस पर संदेह करते हैं, और फिर अपने मुंह से हम अविश्वास वाली बातें और संदेह वाली बातें बोलते हैं। And we nullify the benefits of the promise in our lives. और फिर जो वायदे हमारे जीवन में जो होने वाले होते हैं वो हो नहीं पाते, और हम रोक देते हैं उन चीजों को होने से। Verse 10. Now, verse 10 says, and if you spend yourselves in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness and your light will become like the noonday. और 10 आयत में लिखा है कि उदारता से भूखे की सहायता कर और दीन दुखियों को संतुष्ट कर, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। We cannot hide light, and the light exposes the darkness. और जो रोशनी होती है वो ही अंधेरे को भगाती है। So here, up to this point of time, we see that it is God's intention that when we enter into this place of true fasting and prayer, by doing it, not of listening, but by doing it, then He says, "You are light, and I will use you to dispel darkness around you and in you." और परमेश्वर की जब हम उपवास प्रार्थना प्रभु के तरीकों से सही तरीके वाली हम जब उपवास प्रार्थना में आ जाते हैं, तो परमेश्वर फिर कहता है कि मैं तुझे उस रोशनी के समान इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे आगे पीछे जो अंधेरा है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा उस अंधेरे को भगाने के लिए। And what God is now promising to us, please listen in verse 11. और जो परमेश्वर वायदा कर रहा है हमारे साथ, ध्यान से इसे सुने। आयत 11 में Verse 11 says, the Lord will guide you always. और he will satisfy your needs in a sun-scorched land. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. See the benefits now here. What are benefits? हम 11 में देखते हैं कि जो जितने भी फायदे हैं उस प्रभु की सही उपवास प्रार्थना के, मैं 11 को पढ़ दूंगा। यहोवा तुझे लगातार
लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। If we look closely to verse 11, अगर हम ध्यान से इसकी ओर देखें then we see that the Lord, number one is Lord guides us. और सबसे पहले जो चीज है वो परमेश्वर हमें हमारा मार्गदर्शन करता है And we very desperately need the guidance. और हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है परमेश्वर की जो गाइडेंस है उसका जो मार्गदर्शन है उसकी। I don't know about you, but I have struggled to make decisions. Lord, what should I do in such situation? और मुझे आपका तो पता नहीं पर मैं अपने जीवन में मुझे कई बार समझ नहीं आता परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे तेरी आवश्यकता है हर समय। I just want to share testimony about the guidance of the Lord in my life. और मैं एक गवाही देना चाहता हूं परमेश्वर की जो मार्गदर्शन के बारे में जो प्रभु ने I मुझे just किया। want to share testimony, मैं एक गवाही देना चाहता हूं इस समय especially about the guidance of the Lord when I sought Him in fasting and prayer. और जब मैंने उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर ने जब मेरा मार्गदर्शन किया उसकी मैं गवाही देना चाहता हूं इस समय। I was struggling to decide a very important matter in my life. और मैं अपने जीवन में एक बहुत ही जरूरी एक विषय था जिसके बारे में मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं मुश्किल में था, उसमें क्या करूं। When I retired from government service after serving as a class 1 officer for 32 years in Haryana government. और जब मैं रिटायर हुआ हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस 32 साल करके, and the retirement age in the state government is 58 years. और जो रिटायरमेंट एज थी वो 58 इयर्स जो है उसमें हुई थी। And now the decision that was to be taken by me was, now what should I do after such a hectic work life, and what should I do now? और मेरा उसके बाद ये मैं सोचने में मजबूर हो गया कि मैं अब क्या करूं अपने जीवन में और इस समय में मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूं। Many thoughts and there were many options which were bombarding my mind. और उस समय बहुत सारे जो ऑप्शन थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे। And one of my friends approached me just after my retirement that if you are interested there, I have a suitable job for you because of your experience, and you will get more pay what you are getting at retirement. और मेरे एक दोस्त ने मेरे से बात की और उसने बोला कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे पास एक नौकरी ऐसी है जिसको तू कर सकता है रिटायरमेंट के बाद। And the company is very good, and I will also join that company after I retire because he was having 1 year to go for retirement. और वो बोल रहे थे कि मैं भी इस कंपनी को ज्वाइन कर दूंगा और बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। And I was very seriously praying about it, and also seeking guidance from my family members and my friends. और मैं ये क्योंकि बहुत ही ये सीरियस चीज थी मेरे लिए, जरूरी चीज थी, तो मैं अपने परिवार से भी इस बारे में पूछ रहा था। But more importantly, I was very much eager to listen to the voice of God. मगर प्रभु की आवाज को इस जो विषय में मैं सुन रहा नहीं था। I was praying and many days went by. और मैं प्रार्थना में लग गया और प्रार्थना लगातार करता रहा। मैं बहुत सारे दिन हो गए प्रार्थना करते हुए। And ultimately, I think after about a month. और एक महीने के बाद
there was a very strong feeling and impression in my heart that 32 years enough in the government service. और बहुत ही एक इम्प्रेशन प्रभु का मेरे हृदय में आया और यही आया कि 32 साल बहुत हो गए जो तूने कार्य किया है, कुछ नौकरी की है. And now it is good that you spend most of your time in knowing me and my ways and engaging yourself in the kingdom work. और अब प्रभु ने बोला कि ये समय है तेरा कि तू मुझे और मेरे तरीकों को जाने और अपना जो समय है मेरे राज्य के लिए दे. I was a nominal Christian before my retirement. और मैं एक साधारण सा मसीह था रिटायरमेंट से पहले. And I took God casually, and I thought that in God there is no hard work. और मैं सोच रहा था कि बहुत कैजुअली ले रहा था और मुझे लग रहा था कि परमेश्वर में जो है हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं. Now God has opened my eyes that prayer and fasting is the hardest work. और मगर प्रभु ने कैसे मेरी आंखें खोली और उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की. Prayer is not an easy work. When we pray, then we start sleeping, and this is the most difficult work to pray and even fast. और इतना आसान नहीं है कि मैं प्रार्थना करना, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप वेट करते हैं और प्रभु से बात करते हैं. That's why we see the least attendance in the prayer meetings. और हम देखते हैं कि कई बार के सबसे कम लोग प्रार्थना के जो मीटिंग होती है उसमें ज्वाइन करते हैं. Because here we get the deliverance. क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमें छुटकारा असली में मिलता है. So to cut the long story short. और मैं इस पूरी कहानी को मैं शॉर्ट में बताऊंगा. Our God Almighty knows the end from the beginning. हमारे परमेश्वर को अंत से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक हर चीज का पता है. I was not knowing that the ANDF church God has in mind. और मुझे नहीं पता था कि जो एनडीएफ कलीसिया है परमेश्वर की नजर में है. And I was not knowing that God was preparing me for some assignment for the ANDF church in advance. और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे एडवांस में ही तैयार कर रहे हैं जो मेरी सेवा के लिए जो एनडीएफ कलीसिया में मुझे करनी थी. I said, Lord, I don't know what should I do and how should I contribute in your kingdom. और मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा और मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या जोड़ सकता हूँ प्रभु तेरे राज्य के लिए. I am not a graduate in theology or I don't know the Bible fully. Only partly from here or from there I know the Bible. परमेश्वर मुझे इतना कुछ नहीं आता, मेरे को तेरे वचन का भी इतना नहीं ज्ञान मुझे वचन का प्रभु. But God in His mercy gave me the first assignment to teach in the children's church in our place church in Delhi. मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मदद की कि मैं जो हमारा संडे स्कूल होता है बच्चों का मैं वहां पे सिखा पाया. प्रभु ने मुझे असाइनमेंट दिया ही. And my students were knowing more Bible than me. और मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो मुझसे ज्यादा वचन जानते थे. They were the students of pastors and elders of that church. क्योंकि वो जो जितने भी स्टूडेंट थे बाइबल संडे स्कूल में वो सारे पासवानों के पास्टरों के बच्चे थे. Daily they used to read Bible in their houses. और वो हमेशा बाइबल पढ़ते थे अपने घर पे. So praise God, God is faithful when He gives the assignment, then He equips us. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर वफादार है और परमेश्वर ने मुझे ये एक असाइनमेंट दिया जो मैं कर पाया. And God now has promoted me to speak in the biggest platforms.
Uncle, can you please say again? How God by His grace by His grace helped me to speak in the bigger forms, और मैं platforms. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण प्रभु ने मुझे और जगहों पे, जो बड़ी बड़ी जगहों पे भी प्रभु ने मुझे किया है इस्तेमाल. From Sunday school to foundation courses to the pulpit and to the mission trips. और संडे स्कूल से लेके कलीसिया में प्रचार करने के लिए और फाउंडेशनल कोर्स करवाने के लिए, और उसके बाद मिशन ट्रिप्स में भी प्रभु ने मुझे इस्तेमाल. Without God we can do nothing. और सच्चाई ये है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. और सच्चाई यही है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. And all glory goes to God, whatever He has done through me and still doing in and through me. और सारी महिमा परमेश्वर की है, जो प्रभु अभी मेरे जीवन में कर रहा है और जो मेरे द्वारा प्रभु करेगा और जो कर रहा है. सारी महिमा प्रभु की है. I daily cry out to Him, Lord, make me fruitful and you take glory from my life. और मैं हर दिन, मेरी यही प्रार्थना होती है परमेश्वर के मुझे फलदायक बना और परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर. Listening is not enough, and God desires that we become wise builders and do what He is telling us to do. सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान उस व्यक्ति के समान बन जाए जिसने अपना घर एक नींव पे बनाया है और एक रेत पे नहीं बनाया, नींव एक चट्टान पे बनाया है. बुद्धिमान बिल्डर की तरह हम बन जाए, बनाने वाले के समान बन जाए. Into this place of true fasting and prayer, we are required to start and make a choice to do it from today onward if you have not started. और आज उपवास प्रार्थना के दिन से अगर कुछ चीजें हमने करना नहीं शुरू किया, चाहे प्रार्थना हो चाहे उपवास ही हो, तो आज के दिन से हमें करना शुरू करना है. The Lord God Almighty is inviting us to come and to start walking in His ways that will take us to Him. और परमेश्वर आज हमें न्योता दे रहा है कि आओ और मेरे तरीकों को सीखो और मेरे तरीकों में चलना शुरू कर दो. God bless you all and God take the glory from the life of all of us.